अरे क्वेश्चन थोड़ा दे सा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। सर, टेस्ट ले रहे हो क्या? सर बता देते ना, पढ़ के नहीं आए। सर हम मैथ्स पर मैं रिवाइज करा दूँ। सर सैचुरेटेड अरे सर लास्ट में ले लेना सर, हाँ सर। अभी पढ़ा दो सर। अरे यार तो किस लिखना अरे सर काफी है सर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये लिखेंगे ना, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एलोट्रोप में एलोट्रोपिक, अरे एलोट्रोप का किधर है? वो तो लिखे हुए हैं पूरा लिखा भी नहीं। हाँ तो एलोट्रोप किधर? अरे सर ने कुछ लिखा हो तो मैंने लिखा है। एलोट्रोप को बता दो सर, एलोट्रोप को बता दो प्लीज। अब ये सही है। ये देख एलोट्रोप की डेफिनेशन में एलोट्रोप का वर्ड आ गया, वो ये डेफिनेशन आया धीरे। कितने कितने पॉइंट लिखने हैं? राइट अ नोट ऑन में। राइट नोट, नोट 5 लाइन का लिखिए। हाँ 5 लाइन तो ऐसे तो लिख देगा। सर डायग्राम से बनाना है और सर इतना, अरे सर 140 की प्राइस रखो। डायग्राम मत दे देना वो डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। हाँ कुछ चीजें मैं बता दूं, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। हाइड्रोकार्बन सर आपने लिखवा दिया था। CH only for hydrocarbon. So methane, ethane, propane, butane. Sir, the carbon compounds which contain carbon and hydrogen. कार्बन एंड हाइड्रोजन सर लिखा हुआ है तो ओनली। कार्बोहाइड्रेट सर CHO contain carbon compound containing CHO. Carbon, hydrogen. compounds containing CH And and O are called hydrocarbon. are called Hydrocarbonate. carbohydrate. Sorry. Carbohydrate. These are source of Source of energy. energy
and taken as food by heterotrophs. Taken as food या ingested as food by heterotrophs. सर ये लिखना जरूरी है, आपने जितना पहले लिखा Trophs. ये ठीक कह रहे हैं. It is used in fuel only. सर 5 लाइन में खत्म कर देना. ठीक है. अब देखो कार्बोहाइड्रेट हो गया. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रो सिंगल बॉन्ड में शायद होता है. Those hydrocarbons हाँ, और which atom. form single bond. those hydro carbons In which all C atoms are combined, linked with single bond. carbon And their residual single bond. बात समझ आ गई? सैचुरेटेड And their हाइड्रोकार्बन residual valence is fulfilled by है ना? hydrogen. वो तो ठीक है. C dash C भी लिख सकते हैं ना. हाँ, containing C-C bond या फिर all carbon carbon हाँ सर इतना ठीक है. single bond. Catenation, self-linking Self-linking property of of atoms. Which is present in carbon and silicon. Linking property of same kind of atom. कैसा? Same kind of atoms is called catenation. It is most in carbon atom. It is most in, ठीक है, कार्बन. अब देखो एलोट्रोपी. Sir, different structures. If an element It is most. exist in nature in different forms due to different structure. Sir, allotropy ये भी तो हो सकता है कि if an element exists with different physical properties but हाँ. having same chemical properties. Molecular formula. Different Chemical properties को अलग हो जाएंगे. Chemical structure. same रहेंगे, physical Is अलग, called. diamond और different physical अलग. उसे क्या कहेंगे? ये Allo- allotropy. Allotrop बोलेंगे ना. Tropy. If an element, then ठीक है. Allotropy Structure. of any element. हाँ ठीक है. Phosphorus का Due to different structure. कार्बन का ये diamond, graphite, fullerene. Then this property is called. इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? allotropy. Is called Allotropy. allotropy, and those different forms are called allotropes Allotrope of that element. सर ये ना लिखे तो चलेगा हाँ लास्ट. चलेगा. And those different forms are called allotropes of each other. ये बात समझ आ गई? Now 6th क्वेश्चन करें. 6th क्वेश्चन में भी डेफिनेशन है. सर ऑर्गेनिक एक बार कंपाउंड. ये थर्ड बता दो. एक मिनट. Why carbon does not? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? The compound which are made by carbon within organism or the material which is made by carbon is called So the compound which is synthesized within our organism are called organic compound. They contain primarily carbon as an element. अच्छा बोलो क्या पूछ रहे हो? third. हाँ, वो सब हम बता देंगे, सारे बता देंगे. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, those compounds which are synthesized, which are synthesized within living organism
ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सर बस इतना ही। आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो those compounds which are not Synthesized. synthesized within which are synthesized outside. which are, ये भी दोनों भी बातें सही हैं, कुछ भी लिखो मैं, synthesized outside living organism, उनको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक compounds can only be synthesized. सर थर्ड क्या होगा? अभी बता रहा हूँ। विदिन ऑर्गेनिज्म, ये किसके अंदर हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म बाय सम वाइटल फोर्स, And can't be synthesized in lab. हाँ, वाइटल फोर्स and can't be synthesized, आउटसाइड ठीक है, in lab condition. So covalent bond, the bond which is bonded Which is covalently. the chemical bond, कौन सा? chemical Bond bonds which is bonded by sharing of Sharing electrons. of which are Bonded. formed By by सर बॉन्डेड नहीं लिख सकते? bond only the chemical bond which are formed by sharing of sharing of या फिर electrons. तो ये लिखोगे एटम के साथ बॉन्ड। Covalent compounds, the compounds which contains covalent bond, all covalent bonds. The compounds which contains all covalent bond. Covalent bond जैसे CH4, covalent compound ना तो वो कंपाउंड जिनमें सभी बॉन्ड कोवेलेंट हो उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ये सेंटेंस पूरा नहीं है, अब इसके आगे लिखना है आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। हमने बता दिया, वो तो लिख ही दिया ना। क्या सर? द कंपाउंड विच कंटेन्स ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो तो आप अपने मन से जोड़ ही सकते हो। अच्छा, आयनिक कंपाउंड, The bonds which are formed by shear transfer of आयोनिक कंपाउंड है। सर हाँ, टाइम तो को भी bond थोड़ा which are formed by बिल्कुल, all बिल्कुल। ionic bond द कंपाउंड्स which are formed which contain। whose constituents are ions. हाँ। सर ये सर, उसके टेस्ट तरह ही नहीं लिख छुट्टी हो सकते। जाएगी क्या? कोवेलेंट की तरह ही नहीं लिख सकते इसको। द कंपाउंड विच कंटेन ऑल आयोनिक हाँ, बॉन्ड। Which, हाँ, इस टेस्ट के बाद छुट्टी। अब पता नहीं, जरूरी नहीं टेस्ट हो भी कि ना हो, क्योंकि अब कुछ नए बच्चे भी आए हैं तो हमें उन्हें समराइज कराना है। नहीं तो एलियनेटेड हैं, वो अपरिचित हैं कि कार्बन क्या होता है, कैसा होता होगा। सर कार्बन के ऊपर दे दीजिए। द कंपाउंड कुछ ना कुछ तो हम कराएंगे आज, लेकिन आप लिख रहे हैं तो आप बैठे न रहें, लिखते रहें। द कंपाउंड विच, सर ये सब लिख रखा है। लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप तो टॉपर। So which, whose constituents, जिसके constituents क्या होते हैं? सर आप मजे बहुत लेते सर Constituents are ionic bond. कोई पढ़ाना तो एक हंसी मजाक है, खेल की प्रक्रिया है। तो क्या हम कोई थके दिल से थोड़ी आराम से पढ़ाओ मजे से। पेज में लिख दो। क्या? पेज में लिख टेस्ट में जाएंगे। अभी क्यों दे रहे हो सर? ठीक है, हम साथ साथ टेस्ट देंगे। ये भी कर सकते लिखते। लिखते जाएंगे, बाद में पकड़ा देंगे। हम लेके जैसे और ये क्या लिख रहे हैं? अब देखो, सर सबके हाँ, सामने लिखा। सर भरोसा करना, यही पेपर आपको चिपका देगा। पहले लिखा हुआ ये लो सर। चलो नहीं ऊपर वाला रखिएगा भरोसा करना पड़ेगा। जब सब दे रहे होंगे। ठीक है, अब देखो
राइट ए नोट ऑन डायमंड ग्रेफाइट और फुलिडीन तो लिख ही लोगे। हाँ वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। सही आता है नहीं आता। कि क्यों वो C4 बनाता है और क्यों C4 प्लस नहीं बना सकता है और क्यों सर C4 डोनेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। वो एनर्जी वाला अच्छा है ना कि फिफ्थ तो बताएंगे ही। सर थर्ड बता दो। सुनो। वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म मैं बताऊं आयनिक कंपाउंड, यानी कार्बन का क्या है? तुम थे नहीं कुछ दिनों में क्या? नहीं, कार्बन स्टार्टिंग में नहीं था। सही है। ये तो एंड में पढ़ा है, हाँ? एंड में थोड़ा पढ़ा है। पढ़ा नहीं आप? सर गाँव नहीं, गया था। सर। स्टार्टिंग में क्या क्या नहीं पढ़ा? सर बाकी सब कर लूंगा, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 4 5 बता बहुत दो। बात है। चलो बाकी थोड़ा सब बहुत तो बता क्या? देते हैं इनके लिए। कार्बन क्यों आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है? तो C इज इक्वल टू 2 4, ठीक है? हां It cannot donate its 4 इलेक्ट्रॉन, that is C में से वो C4 प्लस बना दे और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ऐसा नहीं कर सकता as it requires a very large amount of energy to do so. large ऐसा करेगा तो अपना डुप्लेट तो कर ही लेगा। सर 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दिया? तो 2 बचा ना। तो निकाल दिया 4 तो 4 प्लस रहा 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अच्छा हाँ। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और सेकंड इट कैन नॉट रिसीव 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। C4 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्डिंग कर सकते C4 माइनस, तो ऐसा करने पे इसका ऑक्टेट तो पूरा हो जाएगा। सर 4 इलेक्ट्रॉन Yes. रिसीव 6 proton cannot hold 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 electrons, so it complete its octet by sharing of electron। अब समझ में आया? बोलो। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता कि 4 कैटायन बना दें। 4 देने पे एक पे 3000 4000 किलो जूल एनर्जी लगती है, तो 4 के लिए 20000 किलो जूल कौन एनर्जी देगा इसको? नॉट 6 सर ये लास्ट लाइन तो समझ नहीं आई। 4 ले नहीं सकता, क्योंकि 4 लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सेंटर में 6 प्रोटॉन होंगे। 6 प्रोटॉनों के लिए क्या 10 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ पाना आसान होगा? क्योंकि उनका रिपल्शन बहुत ज्यादा है, और कम प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे क्या? नहीं सर ये पकड़ आपने पाएंगे। 2 पॉइंट ही लिखवाए। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल हो रहे हैं और सेंटर में 6 प्रोटॉन है, वो पकड़ लेंगे कि वो सब भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो इसलिए वो C4 माइनस भी नहीं बना सकता है, टेट्रा एनायन और टेट्रा कैटायन भी नहीं बना सकता है। इसलिए वो अपना ऑक्टेट किसके द्वारा पूरा करता है? शेयरिंग के द्वारा। आपकी कॉपी मिल गई? अब देखो, नाउ एक्सप्लेन वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है? ये क्यों इतना इसमें टेट्रावैलेंसी और खूबियां हैं? कैटिनेशन होता है। ठीक है, कार्बन इज वर्सेटाइल ड्यू टू tetravalency and कैटिनेशन catenation। बस यही है। कार्बन इज tetravalency, ठीक है? It can form single bond as well as डबल एंड ट्रिपल multiple bond, that is double and triple bond, ठीक है? It can form bonds with HOSClFbri, ठीक है, with sufficient strength।
ठीक है. It also can catenate to form long chain. ये क्या बना सकता है? क्या लॉन्ग चेन बना सकता है? ठीक है भाई. सी करते करते हजारों तक जुड़ जाए. इट कैन ऑल्सो फॉर्म ब्रांच कंपाउंड. ऊपर लग जाए सी जितने मर्जी, क्योंकि टेट्रावैलेंसी देखा नहीं था डायमंड में. रिंग कंपाउंड भी बना सकता है, लीनियर भी बना सकता है. सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म branched compound, linear compound and ring compound. Due to these features, इन्हीं वजहों से कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर. सर वो जो आपने कई सारे एग्जांपल लिखे उसमें एक दो लिख दे तो चलेगा? कौन से? जैसे HOS लिख दिया फिर एक्सेट्रा लिख दिया. और क्या? इतनी बात समझ आ गई? तो 5th क्वेश्चन अभी हम नहीं कराएंगे, बाकी आप कर लो. सर एक नोट. सर 2 मिनट दे देना. 5th को अभी हम सर नोट जितना भी हो जाए 6:30 बजे तक करके दे दो. हो जाएगा. देखो कितनी जल्दी हमने करा दी, आधे घंटे में. आप तो होशियार आदमी हैं। होशियार हमसे ज्यादा आप लोग तेज हैं. सर एक कंपाउंड के बारे में डायमंड ग्रेफाइट के बारे में 5 लाइन लिखेंगे. चल जाएगा. आप बस थोड़ा आगे बैठ जाओ. सर ये AC इधर. सर ये AC कम कर दीजिए. कर देता हूँ. इधर दीपांशु बैठना है. कौन सा? पीछे वाला क्या आगे? आगे वाला सर वो पूरा लिखना है. HOSCNF तीन सबके साथ ये बनाता है. फाइव तक करके दो. अभी आप लोग थोड़ा और देख लो और 6:15 से शुरू करना. सर फोर्थ वाला और वर्सेटाइल नेचर का मतलब है इसके पास टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन. टेट्रावैलेंसी है. हाँ तो यहाँ से ये अपने मर्जी से टेट्रावैलेंट है. हाँ तो मर्जी जिससे जुड़ता चला जाए. हाँ अब ब्रांच भी बना सकता है, हाँ. शाखाएं. सर 2 और कहीं ना कहीं एच से जुड़ जाए, कहीं एच से जुड़ सकता है, आपस में जुड़ भी सकता है. और कहीं कहीं डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड बना ले. तो ये सारी खूबियां हैं इसके पास कि नहीं. ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड. ऐसे शुरू सर और भी तो होता है. कार्बन का आइसोमर्स होते हैं वो सब. आइसोमर्स भी होते हैं. इसके अलावा वो इन सब के साथ बॉन्ड बना ले सकता है. कैटिनेशन का मतलब जानते हो? हाँ. अपने आप में ही जुड़ता चला जाए तो कैटिनेट कर सकता है. तो दीज आर द वेरियस फीचर्स की कैटिनेट कर सकता है और टेट्रावैलेंट है. ब्रांच कंपाउंड बना सकता है, रिंग में भी बना सकता है. बेंजीन देखा है, सब सी घिरे हुए रहते हैं C6. और चाहे तो लीनियर भी बना सकता है. बेंजीन C6H6 होता है. हाँ, सब C6 सी घिरा हुआ हेक्सागोनल. अच्छा. तो हर चीज बना सकता है. तो इस तरीके से ये है. सर एक बार बाइट
बातें नहीं करना लेकिन पीछे। आनंदिता तुम उधर बातें करती, ये दोनों वीक होते जा रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो रही, तभी इसको बुलाना पड़ा मुझे। जो बात करनी तुम्हारे बगल बैठी थी, सामने ये लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, वो ऐसे ही पढ़ते नहीं है। इसीलिए हमने बोला था कि इनको आगे बैठा लेंगे, लेकिन आगे बोला छोटी सीट है, मैं कहाँ बैठा। अरे सॉरी। ओके, नाउ वी विल सी। ठीक है, अपने अपने ग्रुप में बात करो, इधर उधर बात मत करो, उससे क्या होता है कि क्लास डिस्ट्रैक्टिंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ कैन पे अटेंशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, so those hydrocarbons containing carbon-carbon multiple bonds are known as unsaturated hydrocarbons. Repeat करो कैटरीना। सर मैं करूं? ऐसे सिर्फ बैठने से क्या फायदा है, बोलो पीयूष। ये सर मैं करूं? ध्यान ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बैठने का। बताएंगे। इसका सर मैं मतलब कहूं? आप क्या बताएंगे प्रत्युष? फिर बात करने लग गए, क्या किया जाए आपका? हाइड्रोकार्बन has tendency to form multiple bonds. कार्बन कार्बन, अभी अगला क्वेश्चन पूछेंगे तब ध्यान रखना। सर मैं ध्यान रखिएगा, अगले में गड़बड़ मत करिए। सर हिला दिया। सर मैं कहूं इसका? ठीक है, Those hydrocarbons in which CC are bonded, नहीं, CC have double bond. containing carbon-carbon multiple और single bond. Single Multiple bond, two or more bonds. Multiple, that is 2 or 3. मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल। Double or triple. सर इसको बाहर बाद में पाई भी बोलते हैं ना? हमें नहीं मालूम, तो अपना बोलते रहो। ठीक है, पाई पाई जोड़ के आदमी अमीर बनता है। सो इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी नॉन सेटिस्फाइड। अनसैचुरेटेड का मतलब इनको और हाइड्रोजन चाहिए, जिससे कि इनकी टेंडेंसी पूरी हो जाए। इनको ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन दे वर कंपेल्ड टू फॉर्म डबल बॉन्ड। और अगर हाइड्रोजन और मिल जाए तो फट से ये अपना डबल बॉन्ड ना छोड़ दें। तो इस तरीके से जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी हजारों कैलकुलेट कर सकता है। पॉलीथीन में सिंगल यहाँ से शुरू होता है, वहां तक जाता है। ये देखो, तो क्या इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी है? H H H H। तो यहाँ पे ये क्या हो सर गया? नीचे नहीं बनाया H। अनसैचुरेटेड हो गया। हो गए 4 ना, कितने बनाओगे? 5 बना दें क्या? अच्छा ओके। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईथीन। C2H4। और अगर मान लीजिए 3 बॉन्ड बन गए तो सिर्फ C2H2। अरे वो सबको पता इथाइन हो गया। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इन पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये जो चीज है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एंड दीज आर ऑयली इन टच। जैसे जैसे चलोगे आगे चलने पे, इथीन तो गैस है, लेकिन अगर 5 या 5 से आगे चलोगे तो जब ये लिक्विड होने लगते हैं, 6 तक ये गैस है, 7 8 के बाद लिक्विड होते हैं, मतलब C8। और ये पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल। और इससे पहले C7, ये इसको कहते हैं गैसोलीन।
ये क्या होता है हाँ, सर? ड्राई सर। क्लीनर। ये जो ड्राई क्लीन करता है गैसोलीन रखता है। ड्राई ऐड भी आता है सर इसका। क्लीनर, ये पेट्रोल है। इसी तरीके से C14, सर डीजल। ये हर चीज जानते हैं। डीजल। और C17, 34, 36 कैरोसिन ऑयल। एल्कोहल। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन घासलेट या मिट्टी का तेल। जमीन से निकाला जाता है ना, इसीलिए इसको मिट्टी का तेल कहते हैं। हाँ सर, सर कीड़े मकोड़े घासलेट किसलिए कहते हैं इसको? कैरोसिन ऑयल भी कहते हैं। घास पे लिटा लिटा क्यों बनाते हैं? ठीक है, बम्बई वाले घासलेट कहते हैं। अब देखो, इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आगे चलने पर सर एक ये ये C36, सर रॉकेट H72, 74, रॉकेट तो ये क्या चीज हो गई? रॉकेट दैट इज वैसलीन। वैसलीन। रॉकेट फ्यूल, ये एविएशन ऑयल भी यही है। एविएशन। यही है, सिर्फ इसी का केरोसिन। जो उसमें कैरोसिन से ही चलता है, उसे और रिफाइन कर दिया था बस। सर वैसलीन तो हम अपने हाथों पे लगाते हैं। H102, ये इसको कहते हैं asphalt। क्या आप इन सभी में ये देख रहे हैं? जैसे लास्ट वाला क्या है? सुन लो, आल्फाल्ट। नहीं क्या सबका सर, एक बात पता सर चल टू रहा नहीं आता। आपका किसी को सर सब इसी तरह से आ सर रहे हैं। लास्ट वाला क्या है? asphalt, देख लो, कभी सड़क बनती एस है। किधर लिखे? हाँ वो ग्राम कुछ डालते हैं। ये देखो, सड़क के ऊपर जो काला काला डाला जाता है ना लास्ट में के बाद, वो asphalt है। अलकतरा। वैसलीन जानते हो? तो वैसलीन जो पैर में लगाया जाता है, क्रैक एसआर क्रीम, और बाकी सब चीजें आप देखो। तो मेरा कहने का मतलब है, सुन लो, सर वैसलीन तो C1 से C6 क्या है? बोलो। और C7 से फिर आगे चलने पर C40, सी 40 भी क्यों कहो, C25 तक कहो, क्योंकि उसके आगे सेमी सॉलिड होने लगे हैं। ये सब क्या है? वैसलीन। हल्के सॉलिड सॉलिड नहीं लगने हाँ लगे, सर। तो ये लिक्विड। और फिर और आगे चले लिक्विड मतलब C26 से C50 Semi तक, solid। तो बिल्कुल सॉलिड ही है। सर कोक भी तो आता सर है। इसका लिक्विड टाइप होता है, रोड पे डालते हैं। लिक्विड नहीं, वो बहुत पतले पतले सर, सर सेमी सॉलिड का आएगा फिर? सर, हाइड्रो सेमी का- सॉलिड, सेमी सॉलिड वैसलीन है। तो सर इसमें कहाँ आएगा सर? आएगा, इसके आगे जाना होगा। सर हाइड्रोकार्बन में कोक भी तो आता है। आने तो कोक तो pure हाइड्रोकार्बन प्योर कार्बन है। अब सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा कि दीज आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, खट से अपना डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। एंड ऑयली इन टच, जो हायर हाइड्रोकार्बन है वो कैसे हैं? Oily। हायर का मतलब 6 से ऊपर वाले, वो कैसे होंगे? छूने में Oily। ऑयली, इसलिए इनका नाम है ऑयली अफिन्स, ऑलिफिन्स। So these are highly reactive, highly reactive। देखो ये highly reactive है, और साथ में क्या है? जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कैसे होंगे? आर ऑयली ऑयली फिन। टच, सो कॉल्ड ऑयली फिन। ऑलिफिन्स। इसको ऑलिफिन्स कहते हैं, ऑयली प्लस अफिन्स। अफिन्स का मतलब रिएक्टिव, और ऑयली तो और ऑयली। सर सैचुरेटेड को पैराफिक्स कुछ उसको पैरम अफिन्स, लेस रिएक्टिव, और ये ऑयली प्लस अफिन्स, तो इसे ऑयलीफिन्स कहेंगे। अच्छा, हाँ, सर ये इसमें टेम्परेचर ओके। नाउ अब देखो, ये बीच में कम कर देते हैं क्योंकि ना अब देखो बढ़ा। ये देखिए, नाउ दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ, हायर परसेंटेज ऑफ देख लो, एक है C2H6 है और C2H2, बोलो किसमें ज्यादा कार्बन? सर C2H2 में। C2H2 C2H2 ज्यादा है, इसी तरीके से इसमें भी ज्यादा ही है। सर ये कंप्लीटली
बर्न हाइड्रोजन ज्यादा है। C2H4, तो इसलिए दे कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली, दो दीज आर यूज्ड एज फ्यूल्स, लेकिन ये फिर भी पूरी तरीके से बर्न नहीं होते हैं। इसका नाम इथाइन भी है और क्या है, एल्कलाइन एसिटाइलीन। ये देखो एसिटिलीन, इसको क्या कहेंगे, एसिटिलीन। CH3OH These contains कार्बन एंड higher हाइड्रोजन percentage of carbon, so they do not burn completely, पूरी तरीके से नहीं जलते हैं क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा है completely, and during burning produce येलो, पहले तो येलो फ्लेम बनाते हैं और साथ में धुएंदार भी होते हैं। क्या सूटी, सूटी क्या होता है? सूटी यानी धुआं, काला धुआं, तो काले धुएं के साथ जलते हैं। दे प्रोड्यूस येलो सूटी फ्लेम, और जबकि उनकी ब्लू, क्लीन ब्लू नाम सूटी फ्लेम होती है क्योंकि उनका कार्बन सारे जल जाता है, उनमें कार्बन ऊपर उठते हैं हवा में, ऊपर जम जाएंगे कहीं पे गैस, इसलिए जैसे तेल जलता है एलपीजी, तो तेल की बात करें, दिया जलाते हो तो तेल जलाते हो कि सरसों के तेल में दीपावली में, तो कैसे धुआं निकलता है उसमें से, तो दे बर्न विद येलो सूटी फ्लेम। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या चीज ज्यादा है, कार्बन, और जब बहुत कार्बन होगा तो क्या सब जलेगा, सर ब्लैक भी कर देता है कार्बन क्या? ज्यादा कैसे? क्योंकि 2 हाइड्रोजन पे 2 कार्बन है, अच्छा पे 2 है, बोलो किस पे ज्यादा है, तो वो फिर जलेगा नहीं ठीक से। तो बोलो ये अनसैचुरेटेड अच्छा है फ्यूल कि ये वाला सैचुरेटेड? Saturated। सैचुरेटेड को हम लोग क्लीन फ्यूल और कहते से वो ब्लैक सा स्पॉट नहीं बनाता ना? हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से काला धुआं देता है। अच्छा, जो सैचुरेटेड कौन सा? सैचुरेटेड है जैसे मीथेन, ईथेन, C2H2 जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और जिसमें डबल बॉन्ड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अब जरा देखो, ये जो बाजार में जो ये एसिटिलीन है, एक सिलेंडर आता है और इसी में से फ्लेम निकलती है, उससे फ्लेम निकालेगा और गर्म करेगा वेल्डर, तो ये कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑक्सी इसके अंदर होता है एसिटाइलीन गैस, ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस। व्हाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, बताओ अनुराग, बहुत परफेक्ट क्वेश्चन। देखो ये बताने, आप ध्यान से सुनो। सर मैं बताऊं, हाँ, ये because it burns a very large spark। ये सही कह रहे सर हैं। बिकॉज इट हैज हाई कार्बन। ये सर देखो ज्यादा कितना अच्छा कार्बन- है। ये भी ठीक कह रही है, सर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ये बहुत अच्छा कह रही है। it has large amount of carbon and इट इज वेरी Because sir it is gas। it doesn't burn. Sir because it is burnable gas। बहुत अच्छी बात है कि जैसा इन्होंने कहा है कि फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ एसिटिलीन ऑक्सीजन इज डेलिबरेटली मिक्स, इसमें पर्पसली मिलाया जाता है। कहता तुम बाहर से मत लो ऑक्सीजन, बाहर तो 21% हम तुम्हें प्योर दिए देते हैं, अंदर ही अंदर हमारी ऑक्सीजन से चलो, कहाँ बाहर जाओगे ढूंढोगे ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन है, 21%। आधी एसिटिलीन, हमें मालूम है, हमने पहले बता दिया कि माई ठीक बता रहे हैं कि हाफ एसिटिलीन और हाफ ऑक्सीजन। अगर आप पहले से ही ऑक्सीजन मिला दोगे तो क्या वो पूरी तरीके से जल जाएगी, और नहीं तो जिस चीज को वेल्ड करोगे क्या वहाँ काला काला हो जाएगा, कोयला, तो क्या वो टूट जाएगी जल्दी। भाई कहीं पे लोहा गर्म कर रहे हो, कोयला पहुंच जाए बीच में तो आराम से टूट जाएगा, काली पहुंच जाए कहीं पे कार्बन, तो क्या वो चीज मजबूत जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, नहीं ना गर्म कर रहे हैं कार्बन। भाई। आप किसी इसमें से निकलेगी जो फ्लेम, उसी फ्लेम को तो वहां लगाओगे जिन दो लोहों को जोड़ना है। अगर वहां काला काला पदार्थ पहुंच जाए, पहली बात तो येलो फ्लेम होगी, तो येलो का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि ब्लू का, सर येलो ब्लू का। ब्लू इज हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, और येलो और विप्योर सर में वेल्डिंग देख लो के बाद फुलर सबसे ज्यादा क्या है,
विप्योर में वॉयलेट का सबसे ज्यादा एनर्जी है कि नहीं, ब्लू का, तो ब्लू ज्यादा अच्छी। जब तुम्हारी गैस की फ्लेम येलो होने लगती है तब क्या जान जाती हो, ये गैस खत्म होने वाली है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं उसमें ब्लू फ्लेम बने या वॉयलेट बने, तो उसके लिए कि हम उसमें क्या भर दे रहे हैं बताइए, ऑक्सीजन भर दे रहे हैं। सो दैट, सुन लो, सो दैट इट बर्न्स कंप्लीटली, इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस इज फिल्ड हुआ क्या इन सिलेंडर। सर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डाल देने से जो कार्बन है वो पूरे का पूरा जल जाएगा, अनबर्न्ड हवा में नहीं जाएगा। अच्छा। और साथ ही साथ जैसा कि शिवम ने कहा कि इसके अंदर एस्बेस्टस की शीट डाल देनी चाहिए। क्या ये जो आता है क्योंकि कई बार ब्लास्ट कर चुका है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है ये जो सिलेंडर रख रहे हैं बिल्डिंग वाले, अगर इसके अंदर एस्बेस्टस नहीं है तो एस्बेस्टस में वो एब्जॉर्ब धीरे धीरे रिलीज होगी और ब्लास्ट करेगी तो 4-6 लोगों को मार देगी। तो उसको आर्टिकल 1981 के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान है जो एस्बेस्टस की शीट के बिना वाला ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च गैस इस्तेमाल करता हो। तो मतलब एस्बेस्टस सीमेंट की शीट है जो छतों पर डाली जाती है। However, it is also a good absorber of this. So why oxyacetylene gas is used for welding? Why oxygen is mixed in acetylene? पहले तो acetylene का फार्मूला बताओ। Acetylene इसका होता है C डबल बॉन्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। हाँ। ethene सर C3H2 that is C2H ये पेन में बजा H6 तो वहाँ तो C2H2 लिखा है एसिटिलीन में, और अभी उन्होंने हिंट भी दिया था C2H2। सर C2H2 देख लो। So why oxygen is mixed in oxyacetylene welding torch gas? सर ऑक्सीजन इज मिक्स्ड इन सर वो क्या Sir, एसिटिलीन गैस बिकॉज टू बर्न इट कंप्लीटली so that carbon can burn completely. ठीक है, so that it can produce More the heat. required Sir, oxygen melting heat- temperature, More required heat melting होगा। temperature, and do not leave carbon residue at the surface to be welded. Repeat करो। So that it can provide required melting temperature and carbon cannot residue, Do not do leave not leave residue carbon residue at welding welding surface. ठीक है? तो सर हाँ, ऑक्सीजन ये भी तो कहते हैं कि तुम बाहर से जो ऑक्सीजन ले रहे हो मेरे से ऑक्सीजन लो, देखो। इसलिए भी तो एसिटिलीन गैस One point डाला more. जाता है। इस चीज से कि ऑक्सीजन भी कुछ कहता है, वो क्या कहता है वो लिखें। सो सर एक बार इसका स्ट्रक्चर बना इतनी बात समझ में आ गई, ये लिख दिया ऐसे किसी खत्म। तो इसमें ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन मिला दो ऐसे मिला, ऐसे सर बनाते हैं कोई रिएक्ट थोड़ी ना करेगी ऑक्सीजन मिलाना। अब जरा देखो, तो ये इस तरीके से चलती है। These gives addition reaction, एक ऐसी रिएक्शन देती है। So unsaturated, सर ये ऑक्सी एसिटिलीन का दिखा रहे हो? इसमें नहीं लिखाएंगे, ये इसको अलग से बता दिया, इसका अलग क्वेश्चन बनता है। अब इसमें हम नहीं लिखा सकते ना उस चीज को, हमने आपको जानकारी दे दी, अभी क्वेश्चन लिखवा दें कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस क्या है और कितने साल की सजा का प्रावधान है। दोनों सवाल आ चुके हैं एग्जाम। अच्छा। सर क्या क्या अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, गिव, कैटरीना बोलिए, इस सेंटेंस को पूरा करो, अभी बताया था। पीयूष, सेंटेंस पूरा करो, ये सेंटेंस पूरा करो। गिव, अब मास्क ही लगा है तो सही बोलोगे, हमें क्या पता चल रहा चलेगा। give हाँ addition क्या हाँ, सुनना नहीं है तुमको कुछ, अभी दूसरा सवाल भी गया तुम्हारे यहाँ से, सुनना ही नहीं है तो क्या करोगे। एडिशन रिएक्शन, दूसरे बच्चे सब सुन रहे हैं। चलो, इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। सर इसका मतलब क्या हुआ? और जैसे पिछले क्लास में बताया था, देखो तुम्हारा भाई कितना आगे बढ़ बढ़ के क्वेश्चन पूछता, उससे कुछ सीखो।
कह रहा सर इसका भी मतलब बताओ, उसका भी कितना प्रेरणा लो उससे ना। तो मान लीजिए ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन करा दी। हाँ सर। तो ब्रोमीन से इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन किस कलर का होता है? ब्रोमीन का दैट इज रेड कलर का है। इस तरीके का ये रेड कलर का ब्रोमीन है। रेड ब्राउन। हाँ सर एक बार देंगे हाँ सर एक मिनट दे। देना लेना कुछ नहीं, यहाँ देखो ब्रोमीन है रेड कलर का। अब जब ब्रोमीन क्या करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उसके साथ बना लेगा। कल बताया। तो ये C2H4 2Br। रेड ब्राउन कलर है। सर आपने Cl के साथ बताया। और ठीक है, अब यहाँ पर सर देखो ब्रोमीन में 2 कप से कार्बन आते हैं। ब्रोमीन एक एक लेगा। ब्रोमीन Br2 होता है। एक तो C2H4Br2। ये देखो ये कलर है ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन में इथेन गैस पास कर दी, तो क्या ब्रोमीन का कलर उड़ जाएगा? तो ब्रोमीन का कलर उड़ जाएगा और ये बनेगा डाई ब्रोमो इथेन। ये डबल बॉन्ड का सबसे अच्छा टेस्ट है। कोई कहे कि सर्टिफाई करो ये डबल बॉन्ड है इसमें, तो सर क्या? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सर इसमें क्या होगा? What is this? If ethane gas is passed in liquid bromine, then it decolorizes bromine water to form dibromoethane. Repeat करो। Sir, if ethene is passed in liquid bromine, then it decolorizes and forms di-liquid bromine. Dibromo Dibromo ethane। Dibromo। इथेन हो गया, अभी इथीन नहीं रह गया। Ethane। रिपीट करिए आनंदिता। If ethylene gas, इथाइन है ये। if ethene is passed through liquid bromine, which ब्रोमीन is वाटर, वो गलत बोला था, सही बोला। bromine water, which is red brown in color, it decolorizes it and forms dibromoethane. सही है। सो इसको कौन सा टेस्ट कहते हैं? इसको ब्रोमीन वाटर। Bromine। ब्रोमाइड टेस्ट। बहुत अच्छा। सो डाई ब्रोमो इथेन। और ये कैसा है? कलरलेस। क्या इसने इसको ऐड कर लिया? ये चुपचाप इसमें ऐड हो गया बिना कुछ हटाए। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ रिमूव भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? Addition। तो ये एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहते इसको। ठीक है, अब जरा देखो ये डबल बॉन्ड की है। अब कुछ बातें देख रहे हैं कि इफ इथीन गैस सिर्फ सब्ट्रैक्शन रिएक्शन होती है। पास्ड थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये 11th तक कैसे जानते हो? सर बस ऐसे। सर थ्रू गैस इज पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर देन इट डिकलराइज। ये क्या कर देगा? डिकलराइज, रंगहीन कर देता है। Decolorize bromine water and forms colorless। अब बोलो माई, पूरा करो। कलरलेस क्या बनाता है? डाई ब्रोमो या ब्रोमीथेन होगा ना? डाइब्रोमो। ब्रोमो। तो अच्छा। ब्रोमीन है ब्रोमो। क्लोरो इथेन जानते हो कि क्लोर इथेन बोलते हो? क्लोरो इथेन। सर ये सैचुरेटेड हो जाएगा ना? सैचुरेटेड सैचुरेटेड बन गया और फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कि इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? Saturated वाटर टेस्ट। used to test मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड को भी टेस्ट कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड्स को। यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ। अगर किसी में मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड,
और ये तो अगर उस गैस को इसमें पास करोगे या उस लिक्विड को, तो वो इस ब्रोमीन वाटर को क्या बना देगा? कलरलेस। सर मतलब इस वाटर में अगर ब्रोमीन पास करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब सॉरी ऐसा नहीं है C6 तक गैस होती है और 6 के बाद क्या होंगे? लिक्विड। हम ऐसा कोई लिक्विड भी ले लें, जैसे आपको मालूम है घी कैसा सैचुरेटेड है और ऑयल क्या है। अगर मैं इसमें तेल डाल दूं ये सारा कलर चला जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है तेल कैसा है? अनसैचुरेटेड है। क्या ये वेरी रिएक्टिव है तेल? ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी? कैसे? क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए हेल्दी और जिसके पास पैसे सुन लो, नहीं उसके लिए ऐसे इधर उधर की बात ना करो। रिएक्टिव है तो हमारी बॉडी से रिएक्ट करेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो चीज सैचुरेटेड फैट हेल्दी है कि अनहेल्दी? अनहेल्दी, क्योंकि वो सैचुरेटेड रिएक्ट नहीं करेगा, किनारे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा रहेगा। समझ आई बात कि नहीं? तो ये इट इज यूज फॉर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C है, H और H। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ता हूँ, अभी बता रहा हूँ, इन दोनों का पहले डिफरेंस लिखेंगे। 2 ब्रोमीन जोड़ा है तो क्या एक बॉन्ड ऊपर वाले के लिए टूटेगा और एक नीचे के लिए? हाँ, और ये सैचुरेटेड हो जाएंगे। और ये क्या यहाँ भी है और यहाँ भी, और ये PR और ये एक बॉन्ड बचा रहेगा और ये H और H। सर चेक क्या कर रहा है? मतलब ये सारे जो बॉन्ड है ना मल्टीपल बॉन्ड वो टूट गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास थे, उनमें क्या था? रिपल्शन था, तो उन्होंने सिंगल बना लिया और बाकी जो था तोड़कर उससे बॉन्ड बना लिया। अच्छा, ब्रोमीन किस कलर का होता है? ब्रोमीन रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर है। और यहाँ जो बन गया 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को 1,2 का नाम दो। तो बताओ 4 ब्रोमीन की लोकेशन क्या है? क्या 1 पर है? 2 ऊपर और 3 1 एक उसका कमरा नंबर है, तो 1 पर एक ब्रोमीन है, दूसरा भी 1 पे है और एक 2 पे है और दूसरा भी भी 2 पे। तो चारों की लोकेशन बता दी। जैसे 2 ब्रोमीन कमरा नंबर 1 पे है और 2 ब्रोमीन कमरा नंबर, यहाँ पर देखो क्या एक 1 पर है और एक 2 पे है, तो यहाँ लिखो 1,2 और फिर हाइफन। ये क्या क्वेश्चन आएगा सर? मतलब 2 ब्रोमीन कहाँ पे है? कमरा नंबर 1, 2 डाइब्रोमो इथेन। 2 पर एक है और 1 पर एक है। तो सर बोलते समय ये बोलना पड़ेगा, ये सिखा रहे हैं आपको। 1, 2 2 ब्रोमीन है, दोनों का कमरा नंबर क्या है? लोकेंट्स क्या है? 1 2 जो लोकेशन है, जो उनका कमरा नंबर है, उसको लोकेंट कहते हैं। सर इसमें आपने हाइफन ने दिया, इसको क्या कहेंगे? लोकेंट। अब हाइफन लगाओ। कितने ब्रोमीन है? 1 1 2 2। ये देखो कितना अच्छा, मतलब चीजों का कमांड हो तभी तो आदमी बोल सकता है। कैसे इन्होंने बोला टेट्राब्रोमो, ये तो नहीं बोल पाया। सर मैंने सोचा था सबकी में यही सोचा था मैंने। आपने सोचा, उन्होंने बोल दिया। भाई नंबर तो बोलने वाले का है। सेंटेंस बोलो। सही है, बोलो। When ethyne gas हाँ is सुनिए, हाँ गैस इज, when ethyne gas is passed through bromine water, हाँ then it decolorized bromine water and became tetrabromoethane. बिना लोकेंट के नहीं बोलना है, बोलो। 1 1 2 2 में बोलो। सर मैं बोलूं 1 1 2 2 tetrabromoethane. टेट्राब्रोमो सर मैं सर ये बोलूं 1 1 2 2 क्या है? उसकी लोकेशन है। सर मैं बोलूं बोलो। व्हेन कमरा नंबर 1 है। तुम बताते ही नहीं हो ठीक से, तो क्या बोलोगे? प्रत्युष बोलो। क्या ये When ethyne gas is passed through bromine water, then it decolorizes and ब्रोमीन वाटर। then it decolorizes bromine water and forms 1 1 2 2 tetrabromoethane. क्योंकि वो बचा नहीं, तो इस तरीके से ये भी कलरलेस है क्या? कलर। सर अच्छा, when अब
हम इसकी बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, बिकॉज डिफरेंसेस किनके सर? हैं किनके? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर आप ये टेस्ट लो किसका? टेस्ट की कोई बात नहीं हुई है ये हमारे आपके बीच। सर इसका एक बार क्वेश्चन बता दो ना कैसे आएगा। क्वेश्चन नहीं, बस यही डिफरेंस आया नहीं है। सर इसका ये अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड काम जो भी क्वेश्चन होगा खुद का क्वेश्चन लिखवा देंगे। भी आप इनके सर, difference लिखो। सर ये ब्रोमीन के बाद टेस्ट होने के बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा हर किसी में, मतलब कलर लेस हो जाएगा। टेस्ट की कोई बात नहीं। अगर आप कोई भी अनसैचुरेटेड पास करोगे, तेल डाल दो इसमें, आप तेल 60 रुपए का दाम बगल वाले के पास मिलता है, वो काले आम वाला। सर इधर मंगा लेना। इसे लव मीटर कहते हैं। हाँ। इसको हाथ अगर हाथ से लोगे वैसे वो जितनी गर्मी होगी उतना वो बॉइल कर जाएगा। और सर एक बार दो ना। ये सर एक बार नहीं देना। सर नहीं करवाया। सर एक बार दे दो। सर एक बार ऐसे अभी ओ ऊपर से सर कितना लंबा है? पिचकारी छूट रही है सर। अरे सर सर हमसे कितना प्यार करते हैं। अभी फिर होगा तो दे दें। दिल ब्लास्ट हो सर गया। थोड़ी देर पकड़ने में तो फूट जाता। अब आप आगे तो देखोगे ना। सर आपने बहुत गर्मी है। घर में आप लोग तो इसको वो कराते रहते, हम तो घर में एसी के बिना नहीं ले पाते। थोड़ा सा पूरा कमरा गर्म करके रखते हो। हम इसीलिए बार बार कूल कर देते हैं इसको, ठंडा कर देते, फिर ये आनंदिता कहती सर थोड़ा सा। अब देखो नाउ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कितने मार्क्स का आता है? 3 नंबर का। 3 नंबर। सर अब आप 5 मिनट। सर हाइफन क्या होता है? हाइफन एक डैश ये ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, इसको क्या कहेंगे? अरे मत कर। असंतृप्त यानी असंतुष्ट, और ये संतृप्त। तो अब जरा देखें, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जब इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स 2 or more bonds. कार्बन कार्बन मल्टीपल, दैट इज डबल एंड डबल और ट्रिपल भी कह सकते हो। Sir 2 or more. यानी डबल It burns completely together. ठीक है। It produces more Carbon. carbon. It has less amount of It is inert, carbon हाँ in inert nature. inert in सर nature। Inert. सर इनर्ट कंप्लीटली इनर्ट थोड़ा है। मतलब कंप्लीटली नहीं लिख रहा हूँ। सर तो वैसे लिखे ना, इट इज प्रैक्टिकली Inert है, it is inert in reaction and react under very harsh condition, जैसे कठिन परिस्थितियों में। कंडीशन का मतलब है हाई टेम्परेचर सर वहाँ पे आपने एग्जाम्पल घी एंड हाई प्रेशर। सर And inert butter. मतलब क्या होता है? ये इनर्ट का मतलब अक्रिय, क्रियाशील नहीं है, ये मतलब अक्रिय। एक होता है सक्रिय, जैसे एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, हाँ। एक होता है इनएक्टिव वॉल्केनो जो सोया हुआ है, प्रसुप्त है। ये एक्टिव नहीं है। हाँ जा रहे स्कूल जाना, हाँ अच्छा ठीक है, क्या स्कूल जाना है? एक कैसे, एक अक्रिय होता है, सक्रिय। तो ये सोया हुआ रिएक्ट नहीं करता जब तक आप इसे विग्रेसली हिलाओ नहीं, उठो उठो रिएक्शन करो। तो पहले ठीक है। जब भी इट इज एक्टिव इन नेचर एंड रिएक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। Sir, inert
इन नेचर अग्रिय जैसे ही इनर्ट गैसेस है लास्ट वाली, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, सबका ऑक्टेट पूरा अच्छा मतलब इनर्ट मतलब ऑक्टेट अनरिएक्टिव। सर मुझे सेंटेंस का मतलब समझ। मतलब दीज आर अनरिएक्टिव। इनको जब तक खूब प्रेशर ना लगाओ, खूब नीचे से टेम्परेचर ना दो, आपने बताया 650 गैस डिग्री सेल्सियस चाहिए। गैस नीचे से ऊपर 650 इतना सस्ता और ये और जबकि इन सब में ब्रोमीन वाटर डाल के हिला दिया, सब कलर गया, ना कोई टेम्परेचर ना प्रेशर, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब ये देखो, सो दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स These are called सर ये प्रॉपर्टीज कौन paraffins, that is less reactive ना। हाँ सर Param plus फिन paraffins less reactive। आप चाहें तो उसी में भी वो कर सकते हैं। फिर ऑयली है, it is ऑयली इन oily नेचर fins, that is oily in प्लस touch, एफिन सर ऑयली भी तो कंडीशन पे ही होता है ना। reactive। हाँ, आगे जो भी जो हमारे काम के in nature, ठीक है। ये एक बॉल these are used, जो भी गैसेस है ना, these are used as clean fuels। क्या कैसे यूज किए जा सकते हैं? क्लीन फ्यूल जो लोअर कार्बन कंपाउंड्स उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है? Clean जैसे आप fuel। समझ लो, क्लीन ब्लू फ्यूल लोअर कार्बन कंपाउंड्स, लोअर कौन से हैं? क्या सीएनजी, CH4 को सीएनजी कहते हो? हाँ है सीएनजी। CH4 CNG और C4H10 को क्या कहते हो? एलपीजी ये सब है। और ऑक्टेन को क्या कहते हो? C8 केरोसिन C8, ये जो भी है H40 8 दूनी 16 और 18, दो बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना। तो पेट्रोल, ये सब किसमें यूज किए जा सकते हैं? आर यूज्ड एज क्लीन फ्यूल्स, जो कि अच्छे खासे ब्लू कलर में जलेंगे। आर क्लीन फ्यूल्स, जबकि ये क्या है? एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं? ब्लू, क्लीन ब्लू नॉन सूटी फ्लेम्स। क्लीन ब्लू नॉन सूटी का क्या मतलब है? स्मोक ब्लैक स्मोक। और नॉन सूटी यानी बिना धुएं की। सर हाँ, सर पेट्रोल कैसे होगा? ये ऑक्टेन पेट्रोल होता है, पेट्रोल का फार्मूला है। पर पेट्रोल कैसे हो सकता है? पेट्रोल में अगर हम कुछ भी न डालें तो उसमें से कुछ भी नहीं है निकलेगा, यानी अच्छी तरीके से चलेगा। सही पेट्रोल है ना, सर जो गाड़ी स्कूटी के अंदर माइलेज डालते हैं तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा। अगर गाड़ी नहीं है तो पूरी तरीके से जल जाएगा। आपके कंबशन चैम्बर का जो एग्जॉस्ट है ना, उसमें धुआं नहीं देगा पीछे से। प्रॉपरली आपका चैम्बर क्लीन है तो वो पूरा जला देगा। चैम्बर में गड़बड़ी है तो नहीं जला पाएगा। प्रॉपरली ऑक्सीजन, सबके चैम्बर में गड़बड़ी है। हाँ, इसीलिए सर्विसिंग कराते हैं। और सिर्फ कुछ चेक इसीलिए पॉल्यूशन चेक है कि भाई आप सर्विसिंग कराओ। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब देखो, these कार्बन कंपाउंड क्या करते हैं? आर प्रोड्यूस क्लियर नॉन सूटी फ्लेम्स। और जबकि ये लो हायर कार्बन कंपाउंड these are are burning ब्लू with येलो सूटी फ्लेम। ये किस तरीके से जलते हैं? येलो सूटी येलो सूटी सर ये यूज क्यों क्या? अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड जैसे तेल हो गया, वहाँ यूज हो रहा है। हम लोग खाते पीते हैं इनके हायर वाले। Saturated में these are used as clean fuel, these are used as unclean. डर्टी फ्यूल वेजिटेबल ऑयल्स, बटर, ये बटर है तो वो वेजिटेबल ऑयल है। और un- इसके हायर वाले, इसीलिए लोअर दिखाया है। और हायर होंगे तो बटर वटर भी हो जाएंगे। हाँ। जैसे मैंने क्या बताया था, C3H7 और C00H। बटर होने के लिए ये सब भी होना चाहिए। वैसलीन इनके फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी बता रहे हैं, रुक जाइए। Butter sir saturated. अभी पहले पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। अभी लिखाई नहीं तो हम बताएं कहाँ से? आप बोले हाँ, तो हम बता देंगे। जो जैसे इतना समझ में आ गया,
कि ये क्लीन फ्यूल है। नहीं, ये कैसे है? इनमें सुनो, इसमें कार्बन का परसेंटेज कम है, कार्बन का, तो क्लीन फ्यूल होंगे। तो लिखा कि नहीं लिखा? और ये बर्निंग भी जरूर, तो इसको क्लीन फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब मैं बटन का लिखाऊंगा तो बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, इट हैज हाई लो परसेंटेज ऑफ कार्बन और इट हैज, सही है, इट हैज लो परसेंटेज। सर हो गया छुट्टी। देखो ये कितना अच्छा बता रहे हैं कि सर आपने ये तो लिखाया ही नहीं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और एडिशन। बहुत बड़ी बात है। सर ये बॉन्ड कंप्लीटली एंड डजंट। मत बात करो उसको, वो बिल्कुल डिफॉल्टर टाइप है, 1 नंबर लाए 95। तुम चुप रहो, इग्नोर करो। ये मत सोचो कि ये मेरे स्कूल का, तभी उसका कल्याण है। उसको आगे बैठा था, पीछे चला गया, और रोज उसके पापा को जवाब देना पड़ता है, 10 बात हमें सुननी पड़ती है। कुछ बात मत करो, बाहर जाने के बाद करे तो करो, ठीक? सर उसने मुझे बुलाया। वो बुलाने दो उसको ध्यान नहीं है, इधर उधर कुछ ना कुछ टाइम पास करना है। अभी 3 मिनट कैसे पास करे? हाँ बोलिए, कुछ भी पूछो, इधर पूछो इन सबसे, कुछ भी ना करो क्लास में। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप हमारी बातों, आप मत बात करो। ओके, आप अपनी तरफ बात करो, उधर मत बात करो। So it has low percentage of कार्बन। तो और जबकि इसमें क्या है? हाई परसेंट ऑफ सर कार्बन, आपने सीएनजी का फॉर्मूला क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ CH4 मीथेन। कार्बन, CH4। अब बेटा रक्षित ये मुझे बता दो, तब मैं जान जाऊंगा, समझ गया कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कौन है? अभी रुक जाओ, अब हम ये देख लें कि ये बता पाते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोई बताना नहीं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है? दोनों अभी हमने इसमें बोलो। अरे हाथ नीचे हाँ? सैचुरेटेड, वो क्या देते हैं? वो सब ठीक है। ये मुझे बताओ एडिशन रिएक्शन कौन देता है, सब्स्टिट्यूशन? और सब्स्टिट्यूटेड, और ये वाले जो सैचुरेटेड है वो बोलो बोलो, वो कैसी रिएक्शन देते हैं? आनंदिता आप बताओ। और ये वाले रिपीट करो। सैचुरेटेड क्या देते हैं? गलत बता रहे हो, 2 बार वो भी बता दी, तभी गलत बता रहे हो। सर मैं बताऊं, हाँ बोलो। अनसैचुरेटेड एडिशन देते हैं और सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन। सो इट सर चॉकलेट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन। अगर बहुत जानते हो तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ, कल बताया। पता नहीं यार, पता नहीं। सर जब देखो ये बताने वाली है, बताओगे मुझसे पूछें? अच्छा सर मैं याद बताऊं, मिलेगा। सर मैं बताऊं बिना देखे। देखो बताना है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर मैं बोलूं, सर सर मैं बिना देखे सर, मैं बोल बोलूं। सकता हूं। प्लस Cl तो जो दो नीचे के जो नीचे के H हाँ बनेगा क्या क्या? सर मैं बताऊं, CH3 Cl plus CH4। सर HCl बनता है, सर, HCl मैं बताने वाला हूं। CH3 Cl plus H। प्लस Cl2। Cl हटता है। अब क्या बनेगा? सर देखो देखो, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा सर HCl। बोर्ड को देखो। CH3Cl plus HCl, CH3Cl plus HCl। HCl, CH3Cl। पीयूष इसका नाम बताओ। गजेंद्र बताओ। देख लो ये 2 भाई हैं, दोनों में हाइट। कितना फर्क है, एक पीछे बैठ रहा है एक आगे। रिपीट अगर रिवाइज ही नहीं करोगे, अब पहले तुम तेज हुआ करते थे और ये कहीं नहीं था, सिर्फ आगे बैठने से ये टॉपर होने लगा। याद है वो दिन? अभी भी मुझे याद है कि तुम 60 में 12 मार्क्स लाए थे, वो स्वर्णिम दिन, और आज 1 लाते हो।
मैं भूला नहीं हूँ वो अच्छे दिन। मोदी जी के अच्छे दिन। क्लोरोमीथेन, अभी भी वो दिन आ सकते हैं अगर तुम्हें 12 नंबर फिर से चाहिए। अब यहाँ देखो, इट गिव्स Addition reaction. It gives addition reaction. Now पीयूष चौधरी, एडिशन रिएक्शन का अभी एग्जांपल बताया गया, रिकैपिटुलेट करिए, बोलो। मैं बोलूं? तुम सीधा बोल दे तो सर मैं 10th में हुई नहीं, हमें क्या लेना देना। बोलो। C2H2 gives C2H2 प्लस भी तो करवाओ। Br. सर BR2 मैंने तो पूरा गलत 2Br2 बोल रही। 2BR होगा ना, जो सर ने बोर्ड पे लिखते हैं हाँ तो सर 2BR2 एक ऊपर लगेगा Br2। हाँ, बोलो। डाइब्रोमीथेन। सर टेट्रा सर मैं बताऊं, अरे डाई अरे चुप टेट्रा सर टेट्रा ब्रोमो इथेन सर CHBr प्लस HBr। यही है टेट्रा वाला। तो ये समझ में आ गया। एक और पॉइंट एक बात बताओ, इनमें से जय कौन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है और कौन नहीं देता? सर हम तो ये नहीं देता। अभी बताया। नाम में ब्रोमीन आ रहे तो वही दे दूं। इट डज नॉट गिव ब्रोमीन रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और ये it does give bromine water test. It gives. गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कैटरीना, वेजिटेबल ऑयल को किस में रखना चाहोगी और बटर को किस में रखना चाहोगी? मैं बताऊंगा सर फ्रिज में। बटर। देखो ये बता रहे हैं, आप लोग समर्थन करिए, कह रही वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड में रखेंगे। आप बताइए सर सैचुरेटेड फॉर्म को बटर में रखेगा, अनसैचुरेटेड फॉर्म को ऑयल। सर ताजा अच्छा बताएं। सो इसमें लिखो एग्जांपल क्या है, बटर। और इसमें क्या है, वेजिटेबल। सर एक और पॉइंट होगा। और बोलो कौन सा It words completely, it doesn't work. क्या ये वाला word हो गया ना सर No butter की जगह and don't leave residual. से इट इज वेरी हार्श ये कंडीशन। चलो सूटी फ्लेम लिख रहा है, जो एयर में धुआं छोड़ा। हाँ सर मैं एक सही दो तीन चार। अब बस ये अब अगले क्लास में लिखवा देंगे आपको। Sir, saturated hydrocarbon has 9 letters in it and unsaturated ये आ hydrocarbon गया, ये बना रहा है has 11 letters. हाँ? बोलो बंदे ने डिसाइड किया है। सर मैं बताऊं सर एक डिफरेंस They have common hydrocarbon. Both have hydrocarbon in it. सर मैं बताऊं माइनस हो रहा है। सर माइनस नहीं, बॉन्ड है सीरीज। सर एक एग्जांपल बताऊं सर हटो। सर मतलब क्या एक एक डिफरेंस सर दीज आर अनहेल्दी फॉर बॉडी बॉडी हाँ सर ये भी हो सकता है, डाइजेस्ट इजली। सर हुआ ना बटर की जगह आप यहाँ पे चेंज कर लो, फिर चेंज लिख लेना। सर ये कोई एनिमल फैट से Animal fat और vegetable gas करेंगे। इसको लिख लो C2H2, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहे हैं। जब हम बटर की बात करेंगे तो O भी आ जाएगा, हम O से बचना चाहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है तो उसमें ये लिख देना, ठीक है लास्ट में। ओके वेलकम, थैंक यू, वेलकम। Thank you, sir. Nice, nice. शिवा